تو مہنگائی نے غریب کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ سبزیاں اور پھل سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس بکنے لگے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو پیاز کی قیمت ہے وہ 140 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی پیاز 140 کے برعکس 170 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت 48 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن ٹماٹر مارکیٹ میں جو درجہ اول کا ٹماٹر ہے وہ 70 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لہسن 355 کے برعکس 450 روپے فی کلو تک، اور ادرک کی قیمت سرکاری ریٹ لسٹ میں 600 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن 600 کے برعکس ادرک مارکیٹ میں 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبز مرچ کا تڑکا بھی شہریوں کے لیے مہنگا ہے کیونکہ 86 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت ہے، لیکن سبز مرچ کی فروخت 110 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو موسمی سبزیاں ہیں ان میں آلو 38 کے برعکس 50 روپے فی کلو تک، میتھی 40 کے برعکس 70 روپے فی کلو تک، اور بیگن 78 کے برعکس 120 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کریلے کی قیمت میں تاہم آج 10 روپے کا مزید اضافہ کیا گیا، 270 سے قیمت بڑھا کر 280 روپے مقرر کی گئی، لیکن 280 کے برعکس مارکیٹ میں کریلے جو ہیں 350 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پالک دیسی 30 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی پالک جو ہے 50 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بند گوبھی 25 کے برعکس 40 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 70 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک، اور اروی کی قیمت 150 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی اروی 170 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 3 پھلوں کی قیمتوں میں آج جو ہے اضافہ کیا گیا ہے۔ سیب کالا پولو 280 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 380 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ دوم 5 روپے مہنگا کر کے 105 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن جی مارکیٹ میں 150 سے 170 روپے فی درجہ تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کھجوری رانی 5 روپے مہنگی کر کے 455 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن 520 سے 540 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ سب سے سستا پھل جو ہے امرود سمجھا جاتا ہے، جس کی قیمت میں 4 روپے اضافہ کر کے 100 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں بھی یہ جو ہے 100 کے برعکس 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نقطوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک شامل ہیں وہ بھی مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ، آپ ہمیں ریٹس بتا رہے تھے اس حوالے سے۔ تو سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ضلع لاہور سے اپنے متوقع امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 25 حلقوں کے لیے غیر حتمی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تحریک انصاف کی عام انتخابات کی تیاریاں، ضلع لاہور سے اپنے متوقع امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دیا۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 25 حلقوں کے لیے غیر حتمی فہرست تیار کر لی۔ بیشتر سابق ارکان اسمبلی کو ہی دوبارہ ٹکٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ضلع لاہور کی قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ناروال کے رہنماؤں کو بھی ٹکٹ ملنے کا امکان۔ موجودہ ایوان بالا سینٹ کے 2 ارکان بھی قومی اسمبلی کی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ این 123 سے مہر واجد عظیم اور ابرار الحق کے درمیان مقابلہ۔ این 124 سے کشمیر اسمبلی کے رکن غلام محی الدین دیوان اور محمد خان مدنی میں ٹکٹ کی دوڑ جاری ہے۔ این 125 سے ابھی تک وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اکلوتی امیدوار ہیں۔ این 126 سے عباد فاروق میں مقابلہ۔ این 128 سے عثمان حمزہ ایوان کا نام زیر غور۔ این 129 سے میاں اکرم عثمان، ہمایوں اختر خان اور سینیٹر ولید اقبال ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ این 130 سے شفقت محمود بھی اکلوتے امیدوار ہیں، جبکہ این 131 سے ہمایوں اختر خان اور علی امتیاز وڑائچ کے درمیان ٹکٹ کا مقابلہ۔ این 132 سے چودھری منشا سندھو اکلوتے امیدوار۔ این 133 سے سینیٹر اعجاز احمد چودھری، جمشید اقبال چیمہ، عاطف چودھری کے درمیان ٹکٹ کا مقابلہ۔ این 134 سے ظہیر عباس کھوکھر اور ڈاکٹر شاہد صدیق ٹکٹ کے امیدوار۔ این 135 میں حاجی کرامت کھوکھر اور ان کے داماد ظہیر عباس کھوکھر میں ٹکٹ کی دوڑ جاری ہے۔ پی پی 145 سے میاں محمود الرشید، فاروق خان اور ابرار خان کے درمیان مقابلہ۔ پی پی 148 سے حافظ ذیشان رشید ٹکٹ کے امیدوار۔ پی پی 151 سے میاں اسلم اقبال اور پی پی 159 سے ڈاکٹر مراد راس میدان میں اتریں گے۔ میاں محمود الرشید پی پی 160 سے بھی امیدوار ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس اور بلال اسم بھٹی کے درمیان پی پی 163 کی ٹکٹ کے لیے مقابلہ۔ پی پی 161 سے ندیم عباس بارہ اور پی پی 173 سے سرفراز کھوکھر ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ پی پی 172 سے خالد محمود گجر امیدوار ہیں، جبکہ پی پی 167 سے شبیر گجر اور سمیع اللہ کے درمیان ٹکٹ کا مقابلہ۔
पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा हतमी फैसले तक कार्रवाई मुलतवी की जाती है। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, लिहाजा अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक समाअत रोकी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलों पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी और दूसरे शहरों में मुंतकिली के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर दलाइल के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शोहराम सरवर चौधरी ने गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी और दूसरे शहरों में मुंतकली के खिलाफ फवाद चौधरी और एजाज चौधरी की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाई गई। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 रहनुमाओं समेत 77 अफराद को 1-1 माह के लिए 3MPO के तहत नजरबंद किया गया है। पीटीआई रहनुमाओं ने PSL के लिए सिक्योरिटी इंतजामात में रुकावट डाली और अमनो अमान को खतरे में डाला। पाबंदी के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने माल लोड पर एहतजाज करके सड़क को ब्लॉक किया। शाह महमूद कुरैशी अटक जेल, असद उमर राजनपुर, उमर सरफराज चीमा बक्कर, वलीद इकबाल लैया जेल में नजरबंद हैं। आजम सवाती रहीम यार खान, मुराद राज, DG खान, मोहम्मद खान मदनी बहावलपुर जेल में नजरबंद हैं। आजम खान न्याजी और एहसन डोगर लैया जेल में नजरबंद हैं। DC लाहौर ने 30 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने सरकारी वकील को हाई कोर्ट ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट जमा होने के बाद 3 मार्च को समाअत की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। राजनपुर इलेक्शन इस बात का सबूत है कि PDM ढिठाई की तमाम हदें पार कर चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। राजनपुर में PDM और उनके हामियों के जोर के बावजूद मोहसिन लगारी जीते। इमरान खान गरीब, मजदूर और हारी की आवाज़ हैं। हर तरह की खौफ की, दबाव की, हरासा करने की फ़ज़ा बनाने के बावजूद PDM और उनके साथ उनके तमाम जो हमायती हैं, उनकी सारी ताकत के बावजूद ये बात साबित हो गई जब इंतखाबात का नतीजा आया कि 35,000 वोटों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी कामयाब हुए। और इमरान खान आज गरीब की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है, हारी की आवाज़ है। फरूख हबीब का मजीद कहना था कि जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी। जेलों में उन्हें हुकूक नहीं दिए जा रहे। 1 मार्च को फैसलाबाद में गिरफ्तारी दूंगा। इलेक्शन न करवाने का जिम्मेदार शहबाज शरीफ का एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। मैं परसों बरोज 1 मार्च को फैसलाबाद से खुद गिरफ्तारी दूंगा। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। आप ये बताएं कि आइन में लिखा है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। 90 रोज में इंतखाबात के ऊपर, आइन के ऊपर खुद ब खुद अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए रास्ते में रुकावट कौन है? एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ, वजीर आजम का दफ्तर, इलेक्शन कमीशन जो खुद आईनी अदारा है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का कहना था कि ये पनामा केस नहीं, आइन की पामाली का केस है। उन्होंने जमहूरियत पर हमला किया है। महंगाई का तूफान है। हुक्मरान बताएं महंगाई अब कब कम करेंगे। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि PDM ने मुल्की मैशत को बेहतर करने के लिए हुकूमत संभाली। ये गलती नहीं, चैलेंज था जिसे कबूल किया गया। महंगाई साबिक हुक्मरानों का तसलसल है।
उलमा इस्लाम की जानिब से जामिया मस्जिद मदीना करीम पार्क में लाहौर के ओहदेदारों का तरबीती कन्वेंशन हुआ। मेहमान खुसूसी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मरियम नवाज का शहबाज शरीफ की हुकूमत बारे बयान नून लीग का जाती मसला है। PDM ने हुकूमत लेकर गलती नहीं की बल्कि चैलेंज को कबूल किया है। महंगाई के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। इमरान खान मुल्क को गरकाब कर रहा है, मुल्क डूब रहा है, मुल्क की मईशत डूब चुकी है। अब ऐसे में हम खामोश तमाशा बन के नहीं देख सकते थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि PDM ने जो कदम उठाया वो मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, और उसमें हम अभी भी लगे हुए हैं। तकरीब में मौलाना अमजद खान, प्रोफेसर अबू बकर और मौलाना गजनफर समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन यासिर के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जेद की इंक्वायरी एहतसाब अदालत का उस्मान बुज़दार को नैब में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला की अबूरी ज़मानत में 7 मार्च तक की तौसीह कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात की इंक्वायरी। एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि उस्मान बुज़दार ने ताहाल इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने इंक्वायरी क्यों ज्वाइन नहीं की। अगर आप इंक्वायरी ज्वाइन नहीं करेंगे तो जमानत मुस्तरद करने के लिए यही काफी है। जाएं आज ही इंक्वायरी ज्वाइन करें। उस्मान बुज़दार ने बताया कि आज डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब है, लिहाजा अदालत कुछ वक्त फराहम करे। उस्मान बुज़दार के वकील ने इस्तदा की कि हमें अगले हफ्ते तक की मोहलत दी जाए। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो इंक्वायरी ज्वाइन नहीं कर रहे वो अदालत से क्या रिलीफ चाहते हैं, हम जुमेरात को तलब कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सर इस दिन वलीमा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बताएं क्या इनका केस 50 करोड़ रुपए तक जाता है। नैब तफ्तीशी ने कहा कि अभी ये तायुन नहीं हुआ। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर बताएं कि ये तफ्तीश कैसे शुरू होगी। नैब तफ्तीशी ने बताया कि इनके खिलाफ 10 अरब रुपए की शिकायत मौसूल हुई हैं। उस्मान बुज़दार ने वालिद और फैमिली के नाम पर असासे बनाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, मेरे तो पूरे कबीले के 10 अरब रुपए के असासे नहीं हैं। ये जो 10 अरब की बात करें, ये तो मेरे पूरे ख़ानदान के असासे भी 10 अरब नहीं है। और ये आजकल मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे, मेरे भाइयों पे, मेरे दोस्तों पे केसेस बना रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह और इनको हम फेस करेंगे। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक तौसीह कर दी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान के साथ मुलाकात की है। इलेक्शन के हवाले से आईनी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मिले हैं। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर बिलीगुर रहमान से मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के अमूर और अमूमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का इस मौका पर कहना था कि सूबा भर में इंतजामिया गैर जानबदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आईनी किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला ऑफिस में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़राए आला ने बैन-ओ-सूबाई हमआहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन से मुतल्लिक़ भी तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि सब ने मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बैन-ओ-सूबाई हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए सब को बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। निश्टर 2 हस्पताल मुल्तान के मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए जायजा इजलास में निगरान वज़ीर आला ने हस्पतालों के ज़ेर तकमील मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। असातिज़ा की मर्दमशुमारी पर ड्यूटियां स्कूल खाली हो गए हैं। स्कूलों में निज़ाम तालीम तातुल का शिकार है। 12वीं जमात तक इम्तिहानात की तैयारी मुतासर होने लगी। असातिज़ा को मर्दमशुमारी की जिम्मेदारियां तफवीज़। स्कूलों में निज़ाम तालीम मुतासिर होने लगा। महकमा स्कूल एजुकेशन मुतबादिल पॉलिसी बनाने में नाकाम हो गया। स्कूलों के 50% असातिज़ा की ड्यूटियां मर्दमशुमारी में लगा दी गईं। 10 मार्च से स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा मौजूद नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तैयारी भी मुतासिर होने लगी। अप्रैल में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारिक फारूकी का कहना है कि सेक्रेटरी स्कूल को सूरत हाल से आगाह किया है, जल्द मुतबादिल पॉलिसी बना लेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि फैसल टाउन के इलाके में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया। उधर रायवंड के इलाके से 25 साला नामालूम खातून की बोरी बंद लाश बरामद हुई है। अपडेट करते चले आपको कि फैसल टाउन के इलाके में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा क्या मामलात हैं, ये पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? जी, पुलिस ने एक तो मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। ये बॉडी जो सी है टैक्सी ड्राइवर की, इसकी मिनावा थाने की हदूद से 24 तारीख की रात जब इसको कत्ल किया गया तो 25 फरवरी को इसकी लाश वहां से मिली। उन्होंने मियां हॉस्पिटल जमा करा दी, जिसके बाद जब थाना फैसल टाउन में अगवा का मुकदमा दर्ज था इसके भाई की जानिब से, तो जब उन्होंने लाश की शिनाख्त की फैसल टाउन पुलिस ने, तो आज सुबह जो उनसे लाश उनसे वो जिना हॉस्पिटल डेड हाउस में मुंतकिल की गई है। मुलजिम ने आनी राड के साथ इसके सर में वार किए और इसको जब फैसल टाउन से टैक्सी ऑनलाइन करवाने के बाद इसे ले गए डिफेंस की जानिब में इन्होंने जब इसको रास्ते में कत्ल किया तो उसकी लाश जो है मनामे के करीब एक पुली थी उसके नीचे पत्थरों में फेंक दी। राह गुजरों ने उसकी 15 पे इतला दी तो 24 से 25 की दरमियानी शब इसकी लाश को मियां हॉस्पिटल भिजवाया गया। अब मुकदमा दर्ज है और दफा जो 302 की शामिल हो जाएंगी साथ, और एक मुलजिम गिरफ्तार है, जबकि दीगर मुलजमान जिन्होंने इसको सहूलतकार के तौर पे सहूलत दी कातिल को, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है। जी, तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपको अपडेट करते चलें। आपको इस हवाले से बताएं कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को फैसल टाउन में कत्ल कर दिया गया है, जबकि आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। पुलिस की पेशरफ्त में तब्दीली आ गई है और पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। अफसोसनाक खबर है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसल टाउन के इलाके में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया है। उधर रायवंड के इलाके से 25 साला नामालूम खातून की बोरी बंद लाश भी बरामद हुई है। मोज़ा फ़न की सूरत अजायब घर लाहौर की जारी नुमाइश ने देखने वालों के दिलों को छू लिया है। नुमाइश में फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और सादिकीन के आर्ट वर्क तस्वीरात ने सबको अपना गर्विदा बना दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 3 शख्सियत और हर शख्सियत अपनी ज़ात में एक अंजुमन। फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी तबस्सुम और सादकैन। लाहौर अजायब घर में इन तीनों की शायरी, तस्वीर, नवादरात और आर्ट वर्क पर मुश्तमिल नुमाइश क्या शुरू हुई, गोया रोशनी के 3 मीनारों की चमक दमक आँखों को खीरा करने लगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैज़ साहब की फ़ैमिली से और इसके अलावा सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की फ़ैमिली से ली गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फैज़ अहमद फैज़ को मिलने वाले एजाज़ात, लेनिन पीस प्राइज़, निशान इम्तियाज़, उनकी ज़ाती ब्याज और इसी तरीके से सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की हाथ से लिखी हुई चंद गज़लें, उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली बहुत सी अशिया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अजायब घर के अपने ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं थी। कहीं सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की तस्वीर और उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया ज़ीनत नुमाइश बनी हुई दिखाई दी, तो कहीं नुमाइश देखने वाले फैज़ अहमद फैज़ की नादर तस्वीर में गहरी दिलचस्पी लेते नजर आए। गोया इन शख्सियात के चाहने वालों की तो चांदी हो गई। वो चीज़ें जो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी हैं उनकी अक्कासी यहाँ की गई है, तो वो एक लिंक बनता है आपकी स्टडी का आपकी एक्चुअल लाइफ से। फैज़ अहमद फैज़ को मैं स्पेशली देखने आई थी, ये मेरे पसंदीदा शायर हैं और यहाँ पे इनकी तस्वीरें वगैरह भी लगी हुई इनके ख़ानदान के साथ। गालिब की शायरी पर सादकैन की बनाई गई पेंटिंग्स भी नुमाइश की जीनत बढ़ाती रहीं। इसके साथ साथ 48 पेंटिंग्स पर मुश्तमिल सादकैन की पेंट की गई सूरह रहमान देखने वालों की खुसूसी दिलचस्पी की हामिल रही। इनमें से मुख्तलिफ पेंटिंग्स काफ़ी खस्ताहाल हो चुकी थीं, जिन्हें बहाली के बाद पहली मरतबा नुमाइश के लिए पेश किया गया है। हर काम के अंदर मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उनसे गुजर के ही किसी रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है और मैं समझती मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने इतने बड़े नामवर आर्टिस्ट के काम को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए रिस्टोर किया है। ये शानदार नुमाइश 15 मार्च तक अपने रंग बखेरती रहेगी। चश्मे तसव्वुर भी क्या कमाल की चीज़ है, इंसान को पल भर में कहाँ से कहाँ ले जाती है। और अगर इस सफ़र के दौरान माजी की कुछ यादें, कुछ बातें, नवादरात और तस्वीर की सूरत नज़रों के सामने मौजूद भी हों, तो गोया सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मैच की झलकियां तो आपने देखी, तो ऐसे में मुसलसल दूसरी फतह पर लाहौर कलंदर के फैंस पुरजोश हो गए हैं। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि होम ग्राउंड पर लाहौर को हराना नामुमकिन है। बहुत खुशी है कि लाहौर कलंदर जीता है
اور میری انشاءاللہ دعا ہے کہ فائنل بھی لاہور کا نظر ہی جیتے گا. خوشی کا ماحول ہے, جیسے شہین نے بولی گی, جیسے راشد خان نے بولی گی, تو آج ہم بہت خوش ہیں. جیسے انہوں نے پرفارمنس دی ہے آج 110% پرفارمنس دی ہے آج, انہوں نے بڑا اچھا دکھایا ہے, دل خوش ہو گیا. بہت مزے کا میچ رہا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے زیادہ ہائی اسکورنگ میچ ہوگا, لیکن اسلام آباد اس کے بعد بڑا فلاپ کھیلا اپنی بیٹنگ میں, اس لیے مزہ نہیں آیا میچ کا. ویسے کہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوا میچ, لیکن لاہور نے کافی اچھی طرح ڈومینیٹ کیا اگلی ٹیم کو. میں لاہور کو سپورٹ کر رہا تھا اور بہت خوشی ہوئی کہ لاہور جیتا, اور لاہور کے اندر میچ تھا تو لاہور کو جیتنا چاہیے تھا. میں لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہی تھی اور میرا فیورٹ شاہین افریدی تھا, اور میں نے میچ دیکھا تھا, مجھے بہت مزہ آیا تھا. لاہور قلندر زندہ باد. لاہور کو اوبیسلی سپورٹ کر رہے تھے اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, مزہ آیا اور کراؤڈ بھی اچھا تھا. شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ میرا فیوریٹ پلیئر ہے, اور اسی کی جو ہے وہ پرفارمنس مجھے سب سے اچھی لگی تھی, اور اس کے علاوہ لاہور جیتے گا یہی ایکسپیکٹ کیا تھا, وہ جیت چکا ہے. لاہور پولیس کا شہدائے پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پولیس کے 35 شہداء کی فیملیز کو پی ایس ایل میچ دکھانے کے انتظامات کیے گئے. شہداء کی فیملیز نے افسران سے اظہار تشکر کیا. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر لاہور پولیس کے 35 شہداء کی فیملی کے لیے پی ایس ایل میچ دکھانے کا انتظام. شہداء پولیس کی فیملیز کے بینکوٹ ہال میں کھانے پینے کی اشیاء سے تواضع کی گئی. ایس ایس پی ایڈمن کی قیادت میں قذافی اسٹیڈیم پہنچایا گیا. اس موقع پر شہداء کی فیملیز نے اپنے شہداء پر فخر کیا. شوہر تھے سید عادل حسین, جو کہ مانگا منڈی میں پولیس مقابلے میں شہید ہوئے تھے. پولیس والوں نے, ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی اچھا ہمارے ساتھ کوآپریٹو کیا ہے. جو بھی پرابلمس تھی وہ سب کچھ انہوں نے کلیئر کیا. بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا جا رہا ہے. ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر, ایس ایس پی ایڈمن نے شہداء پولیس کی فیملیز کو قذافی اسٹیڈیم خوش آمدید کہا. کیمرامین حنوک کے ساتھ شاہزیب شہزاد, لاہور نیوز. عمران خان زمان پارک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے. عمران خان براستہ موٹر وے کارکنان کے ہمراہ روانہ ہو گئے ہیں, اور لاہور میں موسم کی خرابی کے باعث فضائی سفر کو ملتوی کیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ عمران خان زمان پارک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے زین علی. جی زین, بتائے گا عمران خان روانہ ہو گئے ہیں, اور کارکنان کی کتنی تعداد اس وقت وہاں پر موجود ہے, اور کب تک عمران خان پہنچ جائیں گے؟ جی بالکل, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت زمان پارک سے اسلام آباد بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. 8:30 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا, لیکن عمران خان کچھ دیر قبل ہی ابھی سے کچھ دیر قبل ہی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ لاہور کی قیادت میں میاں اسلم اقبال, مسرت جمشید ہوا, جبکہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد عمران خان کے ہمراہ موجود ہے. جبکہ عمران خان کے استقبال کے لیے جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی عمران خان کی استقبال کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے جمع کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ سیکیورٹی کا ذمہ شیخ رشید اور علی امین گنڈا پور کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا ہے. اس وقت عمران خان زمان پارک سے اس وقت روانہ ہو چکے ہیں. کارکنان کے ہمراہ ان کی بڑی تعداد ہے. جبکہ چیئرمین پی ٹی عمران خان پہلے بائی ایئر جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد موسم کی خرابی کے باعث عمران خان کا جو فیصلہ تھا وہ تبدیل کر کے اب راستہ موٹر وے عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے زین علی, بہت شکریہ, اپڈیٹ کر رہے تھے. برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر. مرغی کے گوشت کی قیمت 647 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے. انڈوں کی قیمت میں استحکام 235 روپے درجن میں فروخت ہونے لگے ہیں, جبکہ انڈوں کی پیٹی 6930 روپے کی ہو گئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے. جی عبدالقادر. مصنوعات کے سرکاری نقصانوں میں برائلر اور انڈوں کی قیمتوں کو آج مستحکم رکھا گیا, اور اس حوالے سے جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی کھپت میں بھی کمی ہوئی ہے, کیونکہ برائلر کی جو سیل ہے وہ کم ہونے کے باعث ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قیمتیں جو ہے 647 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی. اسی طرح ہول سیل برائلر کی قیمت جو ہے وہ 443 روپے ہے, جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 451 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی. انڈوں کی قیمتیں گزشتہ 3 روز سے جو ہے مستحکم رکھی گئی ہیں. 235 روپے فی درجن آج بھی سرکاری ڈیری لسٹ پر جو ہے مقرر کی ہوگی تھی 930 روپے ہے. اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا برائلر کی قیمت وہ اب بھی آدمی کی قوت سے باہر ہے, کیونکہ 47 روپے 650 کلو کی سطح پر کی قیمت. ٹھیک ہے عبدالقادر, بہت شکریہ, اپڈیٹ کر رہے تھے.
रेलवे पुलिस को जदीद बनाने और नफरी की कमी पूरे करने के दावे जुबानी जमाखर्च साबित हुए हैं। रेलवे पुलिस को नफरी की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे तनसीबात और ट्रेनों में सिक्योरिटी को फूल प्रूफ अभी तक नहीं बनाया जा सका। रेलवे पुलिस में भर्ती का अमल शुरू न हो सका। नफरी की कमी के बायस रेलवे तनसीबात की सिक्योरिटी फुल प्रूफ न बन सकी। जराये के मुताबिक रेलवे पुलिस में मंजूर शुदा नफरी से 2800 जवान कम हैं। मुल्क भर में मंजूर शुदा नफरी की तादाद 7300 है। रेलवे पुलिस में हाजिर सर्विस नफरी की तादाद 4500 है, जबकि हर माह मुलाजमीन की रिटायरमेंट का सिलसिला भी जारी है। अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर डिवीजन में मंजूर शुदा नफरी की तादाद 1500, जबकि हाजिर सर्विस नफरी 915 के करीब है। पिशावर डिवीजन में मंजूर शुदा नफरी 590, जबकि मौजूदा नफरी 342 है। रावलपिंडी डिवीजन में मंजूर शुदा नफरी 885 और हाजिर सर्विस नफरी तकरीबन 475 है। वर्कशॉप डिवीजन में मंजूर शुदा नफरी की तादाद 570, हाजिर सर्विस नफरी 315 है। ट्रेनिंग स्कूल बाल्टन में मंजूर शुदा नफरी 120, जबकि हाजिर सर्विस नफरी 76 है। जराये का कहना है कि नफरी की कमी के बायस मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में ASI और सब इंस्पेक्टर को SHO का चार्ज दिया गया है। जूनियर अफसरान सीनियर सीटों पर तैनात है। मुतअद्दिद रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी न होने के बराबर है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने का प्लान। LDA ने निगरान हुकूमत में ही मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया है। अकबर चौक रिमॉडलिंग का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया है, जबकि 3 अरब 10 करोड़ 10 लाख रुपए से फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खातिर ख्वाह बेहतरी न लाने से ट्रैफिक मसाइल। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए अकबर चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया गया। परवेज इलाही दौर में अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे की मंजूरी दी गई, मगर टेंडर अवार्ड न होने की वजह से संगे बुनियाद न रखा जा सका। अब LDA ने निगरान पंजाब हुकूमत में ही अकबर चौक मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से संगे बुनियाद रखने के लिए इस्तदा भी कर दी गई। LDA ने अकबर चौक रीमॉडलिंग का डिजाइन तैयार कर लिया। DWP की मंजूरी के बाद LDA गवर्निंग बॉडी से मंसूबे की मंजूरी ली गई। अकबर चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मंसूबे की तामीर के लिए 3 अरब 10 करोड़ 10 लाख का तखमीना लगाया गया। मंसूबे के तहत पीको मोड़ से जिना अस्पताल की जानिब जाने वाली ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर 700 मीटर तवील और 8.6 मीटर चौड़ा तामीर किया जाएगा। जिना अस्पताल से पीको मोड़ जाने वाली ट्रैफिक के लिए अंडरपास तामीर किया जाएगा। ट्रैफिक काउंट सर्वे के मुताबिक इस सड़क से रोजाना 1,99,557 गाड़ियां और मोटरसाइकिल गुजरती हैं। फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर से बिलवास्ता और बिलावास्ता 1,04,742 गाड़ियों को फायदा मिलेगा। अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का काम 4 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने वासा के जारी मंसूबों के फंड्स भी रोक लिए हैं। शहर में जारी 16 तरक्याती मंसूबे हुकूमती खजाने बंद होने की भेंट चढ़ गए हैं। वासा ने खजाना खोलने के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा कर दी है। वासा को जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने में बड़ी रुकावट। पंजाब हुकूमत ने वासा के लिए हुकूमती खजाना बंद कर दिया। महकमा खजाना पंजाब ने वासा के जारी और नए मंसूबों के फंड्स रोक लिए। पंजाब हुकूमत ने वासा को माली साल में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंतजामिया ने 16 तरक्याती स्कीमों में सिर्फ 2 मंसूबों पर काम शुरू किया। शहर लाहौर में मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक लिए गए। बजट जारी न होने की वजह से वासा ने साइट पर काम भी बंद कर दिया है। शाह जमाल से शाह जमाल चौक, हरबंसपुरा ट्रंक सीवर और इत्तफाक अस्पताल ट्रंक सीवर पर काम बंद हो गया। इस्लामपुरा अनारकली वाटर सप्लाई मंसूबा, गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू पर सीवरेज सिस्टम की तब्दीली का काम रुक गया। फोर्समैन पीको रोड लिफ्ट स्टेशन, फैसल पार्क शाहदरा पर कोई काम शुरू न हो सका। शादमान कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम, फरुखाबाद डिस्पोजल पंप्स की तनसीब का मंसूबा भी सुस्त रवि का शिकार है। कोट लखपत जेल से मुल्हिका सीवरेज सिस्टम पर वासा ने 12% के बाद काम रोक दिया। माचिस फैक्ट्री शाहदरा में तामीराती काम 42% हो सका। मंसूबा हुकूमती फंडिंग से मशरूत हो चुका है। वासा इंतजामिया का कहना है कि पंजाब हुकूमत को फंड्स के इजरा की इस्तदा की है। फंड्स का इजरा होने के बाद तामीराती काम की रफ्तार को मजीद तेज करेंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पार्किंग कंपनी जिम्मेदारान के दावे हवा हो गए हैं। बड़ी पार्किंग साइट्स पर ऑटोमेटेड जदीद मशीनरी गायब हो गई है। 5 साल बाद फिर से लिबर्टी मार्केट में ऑटोमेटेड मशीनरी लगा दी गई है। पार्किंग रेवेन्यू ताहाल खसारे का शिकार है।
पार्किंग साइट ऑटोमेटेड फार्मूला की नाकामी के बावजूद रेवेन्यू बढ़ाने के जतन। पार्किंग कंपनी ने 5 साल बाद फिर से लिबर्टी मार्केट में ऑटोमेटेड मशीनरी लगा दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इफ्तिताह किया। पार्किंग कंपनी के दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी के 67 साइट माफिया के शिकंजे में है। 244 रजिस्टर्ड पार्किंग साइट मगर कागजों में सिर्फ 67 पार्किंग साइट्स। वीबी, ट्रेड यूनियन, ट्रैफिक पुलिस और प्राइवेट पार्किंग की वजह से नॉन ऑपरेशनल है। लाहौर पार्किंग कंपनी को योमिया लाखों रुपए रेवेन्यू का खसारा है। 20 पार्किंग साइट पर ट्रेड यूनियन और पार्किंग माफिया का कब्जा है। रोजाना 3 लाख और महाना 2 करोड़ 70 लाख रुपए खसारे का सामना है। हालोड, मिली शूज, ग्लैमर मार्केट, लंडा मार्केट, माशाल्लाह सेंटर और दाता दरबार पार्किंग साइट समेत दीगर पर पार्किंग माफिया विराजमान। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि सीओ पार्किंग फौरी इन्फोर्समेंट करवाएं। ऑटोमेटेड बारे दोबारा एक कोशिश की गई है। एलडीए की जानिब से तामीरात गिराने पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। मेन मार्केट गुलबर्ग के ताजिरों ने एलडीए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है और बगैर नोटिस तामीरात गिराने पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एलडीए का गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। ताजिर बरादरी एलडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। ताजिरों ने बगैर नोटिस तामीरात में इस्तेमाल करने पर शोबा टाउन प्लानिंग जोन 3 के खिलाफ एहतजाज किया। दर्जनों ताजिरों ने मेन मार्केट में इकट्ठे होकर नारेबाजी की। गरीबों पे जुल्म, ताजिरों पे जुल्म, ताजिरों पे जुल्म, एलडीए की बदमाशी, एलडीए की बदमाशी नहीं चलेगी। ताजिर बरादरी का कहना था कि बिल्डिंग गिराने से मुताल्लिक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। एलडीए की जानिब से ज्यादती की गई है। इंसाफ न मिला तो लाहौर की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। लीगल तरीके से हमने बनवा रहा था और हमें नोटिस के बगैर गिराया तो ये हमारे साथ जुल्म हुआ, बर्बरियत हुआ, ये हमें नामंजूर है। हम बाला हुकाम से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है कम से कम 2.5 करोड़ का, इसका उनसे अजाला लिया जाए। अगर वो हमारा मुतालबा, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारा जो उन्होंने नुकसान किया है, इसका अजाला नहीं करेंगे फिर हम मार रोड भी बंद करेंगे और जहाँ जहाँ कुछ एहतजाज हम कर सके तो हम करेंगे। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए एलडीए के डायरेक्टर मौके पर पहुंचे और उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन उमर रईस के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मेट्रो बस पर काम करने वाले सफाई वर्कर्स मसाइल का शिकार हो चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की करेक्टर्स कंपनीज के मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं, जबकि मेट्रो बस के बेशतर सफाई वर्कर्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। सफाई वर्कर्स के बारहा एहतजाज के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। सफाई वर्कर्स ने तनख्वाहें ना मिलने पर सफाई का काम करने से इनकार कर दिया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 रोज़ में तनख्वाहें अदा करने की हिदायत कर दी है। पीएचए ने सरकारी इदारों के सामने घुटने टेक दिए हैं। इश्तिहारी मुहिम की मद में फीसें लेने में नाकाम रही है, जबकि पीएचए इंतज़ामिया ताहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर अमल नहीं कर सकी है। सरकारी इदारों से फीसें लेने में नाकाम है, जबकि हुकूमती इदारों की जानिब से पीएचए की मंजूरी के बगैर इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है। एलडीए, महकमा सेहत और महकमा एक्साइज की जानिब से बगैर मंजूरी इश्तिहारी मुहिम चलाई जाने लगी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मरियम नवाज ने सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन में तकरीर करते हुए अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए थे। मरियम नवाज की तकरीर से दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया का वकार मजरू हुआ है। अपडेट करते चलें आपको इस अहम खबर के हवाले से कि मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि यह अहम समाअत होगी। मरियम नवाज ने तौहीन अमेज़ बयान दिया था, जिस पर आज समाअत होगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ है। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान इस पर समाअत करेंगे। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस है, जबकि हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। मरियम नवाज के इस बयान पर
पाकिस्तानी अदलिया का इमेज पूरी दुनिया के सामने ख़राब हुआ है और उनके जज्बात को मजरू किया गया है। अहम केस है जिस पर आज समाअत होगी और मरीम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर यह समाअत आज होगी। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अशफाक ने। जी मोहम्मद अशफाक, बताएगा आज समाअत होगी? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान मरीम नवाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शाहिद राना एडवोकेट ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने के खिलाफ मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। तो अब 9 बजे जस्टिस शुजात अली खान दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। शहर में कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। शौहर के कत्ल में मुलव्वस बीवी साथियों समेत गिरफ्तार कर ली गई है, जबकि शाहदरा टाउन में 2 बच्चों को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। उधर इस्लामपुरा में 8 साला बच्चे का कातिल भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डॉक्टर रजा तनवीर ने तफसीलात से आगाह किया है। जराइम और मुजरिमों पर काबू पाने के लिए पुलिस इन एक्शन। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डॉक्टर रजा तनवीर ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शाहदरा में शोहर के कत्ल में मुलव्विस बीवी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। शफीकाबाद में शहजाद के अंधे कत्ल की वारदात का मुलजिम भी हिरासत में है। शाहदरा में जो है वो 4 फरवरी 2023 के वक़ूआ पेश आया, जिसमें हमीद पार्क की गली में जो है वो एक बंदे को इंटरसेप्ट किया गया और उसको जो है वो 2 शूटरों ने जो है फायर मारा और उसके बाद वो फरार हो गए। उसकी वाइफ ने अपने एक आशना घर मिल के जो है वो उसको मर्डर करवाया है कि वो दोबारा उसको मार के उसके साथ शादी करना चाहिए थी। उसका आशना जो था वो इन शूटरों को उसने हायर किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मजीद वारदातों पर कार्रवाई से मुतालिक बताते हुए कहा कि शाहदरा टाउन में 2 बच्चों को कत्ल करने वाला और इस्लामपुरा में 8 साला अहमद को जलाने के बाद कत्ल करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहदरा टाउन में जिसमें जो है 2 बच्चे जो है वो मर्डर भी हो गए थे, उसमें एक मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिया था, एक मुलजिम की गिरफ्तारी जारी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों मुलजिमान जो हैं वो वकास और दिलावर शाह पुलिस की कस्टडी में है। शाहदरा में शोहर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा बीवी ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया, जबकि मुलजिम शान और इब्रार का कहना था कि मरियम के साथ मिलकर जिशान के कत्ल का मंसूबा बनाया। हम उसके पीछे थे जिसका मर्डर हुआ है, तो वहाँ पे सर इनकी ना रेहान की और उसकी लड़के की हाथापाई हो गई। पिस्टल सर नीचे गिर गया था और जब पिस्टल अबरार ने पकड़ा तो फायर अबरार से लग गया। हम उधर गए हैं उसके पीछे तो उधर जाकर रेहान ने उसको पिस्टल सीधा किया तो उधर हाथापाई हो गई हमारी। हाथापाई के अंदर पिस्टल मैंने पकड़ लिया तो मैंने उसको फायर कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डॉक्टर रजा तनवीर ने मजीद बताया इस्लामपुरा में बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरी को गन पॉइंट पर लूटने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन उमैर के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आतिफ इकराम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नमाज जनाजा में खुसूसी शिरकत की है। पुलिस के आला अफसरान भी नमाज जनाजा में मौजूद थे, जबकि मरहूम का ताल्लुक पंजाब पुलिस के 31वें कॉमन से था। तफसीलात के मुताबिक डीआईजी आतिफ इकराम की नमाज जनाजा निजी सोसाइटी में अदा की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, SSP डॉक्टर असद मलही, SSP मुंतज़िर मेहदी और DIG सुहेल सुखेरा समेत दीगर पुलिस अफसरान की कसीर तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई है। IG पंजाब का इस मौके पर कहना था कि DIG आतिफ इकराम इंतहाई काबिल, प्रोफेशनल और ईमानदार ऑफिसर थे। उनकी अचानक मौत से महकमा पुलिस एक फ़र्ज शनास और ईमानदार ऑफिसर से महरूम हो गई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान ने कहा है कि हमें महदूद वसाइल में रहकर सेहत के शोबे में बेहतरी लाना होगी। अगर कोई मरीज सरकारी अस्पताल आ जाए तो वो पर्ची लेकर इधर उधर फिरता रहता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में 12वें कॉन्वोकेशन का इनाकाद। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर से शोबा सेहत में बेहतरी की अपील कर दी है। गवर्नर वलीकुर रहमान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत से ही कल्बी सुकून मिलता है, जिसके लिए डॉक्टर्स अपना कलीदी किरदार अदा करें। नून लीग के दौरे हुकूमत में मेडिकल के शोबे ने बहुत तरक्की की और आवाम को बेहतरीन सहूलियात दी गयी। आपके पास तो बहुत ही अजीम मौका है। आप अपने प्रोफेशन के साथ अगर इंसाफ करेंगे, इसको अवामी खिदमत समझ के करेंगे, टाइम वही लगेगा, सिर्फ सोच का जाविया बदलने की जरूरत है। और सोच का जाविया बदलने से 2 काम होंगे।
एक आपके काम में निखार आ जाएगा, दूसरा अगर आप रब को पसंद आ गए तो आपकी ज़िंदगी में निखार आ जाएगा और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने मजीद कहा कि दिफा, सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों पर कौमी खजाने से बहुत पैसे खर्च होते हैं। सब काम हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। पब्लिक अस्पताल का बड़ा मसला है, वहाँ कोई दवा लेने आ जाए तो पर्ची इधर से उधर लिए घूमता है। अस्पतालों में रजा कराना तहरीक मुतारिफ करवाना होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें अपनी कारकर्दगी बेहतर। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।